Good afternoon and welcome back. Welcome to this teleconferencing of BSc Honors in Optometry and Ophthalmic Techniques program. Friends, I have written letter to all of you that we'll be holding a series of teleconferencing starting from today, and maybe another 6-7 days we'll be having continuously teleconferencing, because as you know that your examinations are coming nearer, and you must be knowing that your examination dates are June 21st, 24th, 26th and 28th. So we thought that let us revise the whole thing, whatever you have been taught during this last 6-7 months, because I am sure that the counselors, the teachers at your study center must be taking lot of care about you. They will be teaching, they must be teaching you about the anatomy, physiology, biochemistry, pathology of the human system itself as well as the eye. So we thought let us start the process of revising the things, and to make it uniform we thought we'll call some experts over here. Maybe for next 10-15 days we'll keep on continuing having this type of teleconferencing for 2 to 3 hours every day, so that you get benefit of this thing. So with this idea we have today we'll be starting with that basic ocular sciences. And the basic ocular sciences, the first portion which we'll be taking up will be the anatomy of the eye. I think Dr. Neelam Asthana, who is with me today in this afternoon, she has already talked to you about the structure of eye in our earlier teleconferencing. So he will be just revising those things, strengthening whatever that has been left, and if there are certain questions, there are certain things, certain difficulties which you have faced during this time, you can always ask the question. Now we will be starting this teleconferencing right now, and maybe at 3:15 we'll be having break for 15 minutes. Our request to you will be that when we are making any presentation, please do not call in between, unless until it is very necessary. If you feel it is very necessary, only then you call in between. Otherwise, what we will do that last 5 minutes of the session we will keep for after every session we will keep 5 minutes for the discussions. If there are questions, meanwhile what you can do that if you want, you have any question, you can fax it. You will be having our fax number on the screen. You can fax your questions, or you can SMS on my mobile also. If there is some question, you can SMS your question on my mobile also. We'll take those questions. But my request to all of you will be that in between you don't give a call. Maybe when we'll open this session for discussion, and then you can ask your queries. So now we'll not waste further time in this general things, and straightway we'll go on to the anatomy of the eye. And as you know that we have got two eyes, and they have got certain structure, they have got a certain function to do. And what is this structure about? What are how many layers are there of eye? I think Dr. Neelam Asthana, she is with me. I think you already, I need not to introduce. She has been a senior faculty who has been teaching BSc Optometry in various institutions, and she is a renowned ophthalmologist. So welcome to Dr. Neelam to this teleconferencing. Thank you so and much. I think with your inputs our students will be benefited to I'll try my best. So let us start with the structure of the eye, the anatomy of the eye. What is Right, sir. Very good afternoon to all of you. मेरी एक, जैसे सर ने भी बोला है, मेरी एक विनती रहेगी कि दो चीज़ें हैं जिनके लिए आज हम खास कर लेना चाह रहे हैं. एक तो रिवाइज कर देंगे हम सारी ऑकुलर एनाटॉमी, ये उस उम्मीद के साथ कि आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं. मेरी अपनी स्पेशल विनती ये है कि पैरामीटर्स या मेजरमेंट्स या कितने मिलीमीटर है, या ये सब किताबों में दिए हुए हैं, ये याद करने की चीज़ें हैं, इनमें समय नहीं वेस्ट करेंगे हम. मकसद ये है कि जहाँ जहाँ आपको जो समझ में नहीं आया है वो चीज़ें हम आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे. इसलिए प्लीज़ अपने सवाल थोड़ा बात के लिए संभाल के रखिएगा, और रेलिवेंट हो, एनाटॉमी से रिलेटेड हो, और उनमें ये जाहिर हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है. मैं कोई भी डिटेल में किसी मिलीमीटर का, किसी डायमीटर का, किसी डिस्टेंस का या वेट का या वॉल्यूम का डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, क्योंकि वो किताबों में दिया है और वो सब कांस्टेंट होते हैं. तो शुरू करती हूँ मैं.
Eye is a spherical organ which is about 24 millimeter long. Can I have the slides? Yes. And it is situated in the bony cavity which is called the orbit. I'll go a little fast because you already know that. It's made up of 3 layers. Inside of the eye has aqueous humor, and the iris, lens, diaphragm, and the vitreous humor. The cornea and the lens, they form the optical surfaces and take part in refraction. So I think the key points are that eye is a spherical organ which is 4 millimeter long. Yeah, 1 inch long. And about 1 inch long, Yes, and it's situated in the cavity which is known as orbit, and it is made up of 3 layers which you will be talking. And inside the eye is aqueous humor, iris, lens, diaphragm, and other So the structures. globe is filled up with all these things. So, And in this diagram, you can see the 2 cavities. This is the right orbit and this is the left orbit. It's situated in the face, and the other details would be dealt with later on. Just to revise right in the beginning about the embryology, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एक सेल से जब डिवीजन होकर के एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, उनसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएशन के बाद निकलते हैं. डिफरेंशिएशन से मतलब कौन सा सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके हिसाब से उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों में चेंजेस आते हैं. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो हमारी सरफेस एक्टोडर्म है एम्ब्रियोनिक बॉडी की, वो हमें कंजंक्टिवा देती है, कॉर्निया का एपिथेलियम देती है, सारा कॉर्निया नहीं देती, और हमारी आई का जो लेंस है, ये 3 मेन चीजें सरफेस एक्टोडर्म से बनती हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट लेयर है न्यूरल एक्टोडर्म, जो हमारी आइरिस का एपिथेलियम बनाती है, और सिलेरी बॉडी का एपिथेलियम. इसके अलावा रेटिना की जितनी लेयर्स हैं वो न्यूरल एक्टोडर्म से आती हैं. न्यूरल एक्टोडर्म ही विट्रियस को सिक्रीट करता है, जिससे कि विट्रियस ह्यूमर जिसको आप बोलते हैं वो पोस्टीरियर सेगमेंट में आई बॉल को फिल करता है. जो तीसरी लेयर है वो मेसोडर्म, जो एम्ब्रियो में बीच में मानी जाती है कि एम्ब्रियो की मिडिल लेयर जो है वो मेसोडर्म होती है. वो हमें कॉर्निया की बाकी सारी लेयर्स देते हैं एक्सेप्ट द कॉर्नियल एपिथेलियम. इट ऑल्सो गिव्स यू द एंगल ऑफ द एंटीरियर चेम्बर, the outer layers of the eye, that is the choroid and the sclera, and the other parts of the iris and ciliary body except epithelium, because that is coming from the neural ectoderm. तो आपने बताया सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म और मेसोडर्म 3 लेयर्स हैं जिसमें से डिफरेंट पार्ट्स आई के डेवलप होते हैं. जी. तो ये भी हम बात कर रहे हैं कि आई के स्ट्रक्चर्स कहाँ से डेवलप, एम्ब्रियोलॉजी. थोड़ा बहुत इनको जानना जरूरी है, बहुत डिटेल में तो इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते. इसके बाद एक ये डायग्राम है, आप सब इससे फेमिलियर हैं. दिस इज दी LS और दी वर्टिकल सेक्शन ऑफ द आई, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द आई, जिसमें सारे पार्ट्स राइट फ्रॉम द कॉर्निया, एंटीरियर चेम्बर, ये एक पार्ट करके बता देंगे आइरिस. डिटेल में. मैं इसको अभी इस डायग्राम को थोड़ा समझा देती हूँ. आप देखिए आई पूरी एक स्फेरिकल फॉर्म में है, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, बट 2 अलग अलग स्फीयर्स को जोड़ के बनाई गई लगती है ये. इसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट कॉर्निया है, उसके बाद में आपको ये क्लियर जोन जिसको हम एंटीरियर चेम्बर कहते हैं. फिर ये आइरिस, ये कट सेक्शन में ऐसे दिखता है, बीच में ये प्यूपिल है, उसके पीछे में ये आपका लेंस है. तो आइरिस के बीच का जो ब्लैंक पोर्शन होता है, जो हाँ, आइरिस अगर एक हम पर्दा माने तो उसमें बीच में एक छेद है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं. सेक्शन में वो इसी तरह से आएगा. और ये आइरिस और लेंस को हम एक साथ अक्सर ये बात करते हैं कि आई के जो अंदर का कैविटी है उसको आइरिस लेंस डायफ्राम. सो वी टॉक इट टुगेदर एज आइरिस लेंस डायफ्राम, व्हिच इज डिवाइडिंग इट इनटू an anterior segment and the posterior segment. Anterior segment has further got 2 chambers, anterior chamber and the posterior chamber, and the vitreous chamber or the which is filled with vitreous humor. Anterior chamber और posterior chamber दोनों में aqueous humor होता है. Vitreous cavity के it is then the posterior part has retina, the middle layer the choroid, and the outermost the sclera, and from here is your optic nerve arising and going out from the optic disc where it collects, and then it is going out of the eyeball. ये ब्लाइंड स्पॉट मैडम क्या होता है? जो जिसको हम अगर हम ऑफ्थेल्मोस्कोपिकली, आप लोगों ने सुना होगा हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, तो जब हम आई के अंदर बाहर से झांकते हैं तो जिस एरिया में सारे के सारे एक्सॉन्स या नर्व फाइबर्स
इकट्ठा होकर बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ये देखिए, ये बाहर जा रहा है, ये ऐसे सारे कलेक्ट हो जाते हैं, सारी रेटिना के फाइबर्स यहाँ तक आएंगे, यहाँ का फाइबर घूम के यहाँ तक आएगा और यहाँ से बाहर जाएगा। तो जिस स्पॉट पे वो कलेक्ट होते हैं उसको हम ऑफ्थेल्मोस्कोपिकली ऑप्टिक डिस्क के नाम से जानते हैं, या इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिक नर्व हेड, because the optic nerve is starting from this point from the eye and going further into the brain. We call this spot as blind spot because this spot does not give you any vision. आप लोग चाहें तो खुद से करके देख सकते हैं कि अगर आप अपनी राइट आई को बंद कर लें और लेफ्ट आई से को देख से सामने कहीं फोकस करें और अपनी उंगली को कहीं दूर से लाएं, तो एक स्पॉट ऐसा आएगा कि आपकी फिंगर टिप आपको दिखना बंद हो जाएगी। इसको हम दूसरी भाषा में ये कहते हैं कि अगर हम फील्ड चार्टिंग करें या पेरीमीट्री करें तो रेटिना के बाकी सब एरियाज आपको विजुअल इंपल्स देंगे, आपको वहाँ कुछ दिखाई देगा, लेकिन जिस एरिया में ऑप्टिक डिस्क है या ऑप्टिक नर्व हेड है वहाँ से आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और अचानक चीजें दिखते दिखते उस स्पॉट से गायब हो जाती हैं और दोबारा फिर आ जाती हैं जैसे वो स्पॉट हम पार कर लेते हैं, इसलिए इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये डायग्राम आपको ये बताने के लिए है कि ये भी उसमें है सेक्शन, आपको अपर लिड है, ये लोअर लिड है, ये आपका आई बॉल और इसमें कैसे ये मसल्स अटैच्ड हैं जो पीछे ऑर्बिट्स के पिछले वाले पार्ट से आ रही हैं और इनके अंदर एक सारी मसल्स मिलके एक कोन सा बनाती हैं जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व जा रही होती है। ये डायग्राम आपको ये बताने के लिए है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, आप सब लोग जानते हैं इस डायग्राम के बारे में। थोड़ा सा कंजक्टिवा के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। कंजक्टिवा जो है वो हमारी आई की सुपरफिशियल मोस्ट लेयर है। ये इसके मोटे मोटे 3 पार्ट्स हैं जो लिड के ऊपर, मैं आपको इस वाले डायग्राम में दिखा देती हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो आईलिड है ये सबसे अंदर की तरफ, इसमें ये कंजक्टिवा है which is lining the lid margin. It is adherent in this form area and this is, here we call it as palpebral conjunctiva. उसके बाद में ये मुड़ जाता है और रिफ्लेक्ट होता है एक कल्डी सैक बनाता हुआ जिसको हम फॉनिक्स कहते हैं। उसके बाद इट रिफ्लेक्ट्स ऑन टू दी सरफेस ऑफ दी स्क्लेरा, कवर करता हुआ वेरी क्लोज टू लिम्बस इट स्टॉप्स and it does not cover the cornea. So important point here is that the conjunctiva has got 3 parts. The part which is lining the eyelid, both upper and lower, is known as palpebral because palpebrum means lid. Then the other part which reflects lid को कवर करते हुए वो वापस पलटता है स्क्लेरा पे आने के लिए, वहाँ पे उसको एक सैक बन जाता है जो ब्लाइंड है, इसको कल्डी सैक या हम फॉनिक्स कहते हैं। तो हमारे पास सुपीरियर फॉनिक्स, इंफीरियर फॉनिक्स, मिडिल फॉनिक्स, लैटरल फॉनिक्स, ये सब होते हैं। उस वाले एरिया में इसको हम फोनिशियल कंजक्टिवा कहते हैं और बाद में जब वो स्क्लेरा पे आ जाता है तो उसको हम बल्बर कहते हैं। कॉर्निया कंजक्टिवा इज नॉट कवरिंग द कॉर्निया, इट स्टॉप्स जस्ट बिफोर द लिम्बस। कंजक्टिवा के 2 स्पेशलाइज्ड पार्ट्स हैं जो मिडिली होते हैं, एक प्लाका सेमील्यूनारिस है और एक करंकल है। अगर आप लोगों ने बुक में पढ़ा हो या जानते हो, जो एम्फीबियंस में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हुआ करती थी जिससे वो पानी में जब तैरते थे तो उनकी आंख पानी से अफेक्टेड नहीं होती थी, वही मेम्ब्रेन हम ह्यूमन बींग्स में सिकुड़ जाती है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाती है और कोने में खिसक के प्लाइका कहलाती है। इट हैज नो फंक्शन इन द ह्यूमन बींग्स। देन कंजक्टिवा आल्सो हैज स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स ऑफ क्रॉसे एंड वोल्फरिन which are secreting the aqueous part of tear film. आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो भी आप समझेंगे या बाद में आपको रिवाइज भी कराएंगे कि जो हमारी टीयर फिल्म है उसके 3 पार्ट्स हैं। तो जो मिडिल लेयर है जो पानी की है या वाटरी है या एक्वस है, वो ये 2 ग्लैंड से सिक्रीट होती है, ग्लैंड्स ऑफ क्रॉसे एंड वोल्फरिन। इसके अलावा हमारी कंजक्टिवा में यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं, जो हमारी टीयर फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि म्यूसिन लेयर को सिक्रीट करते हैं। And just to again tell you that the conjunctiva stops before limbus and it is not covering the cornea. डायग्राम में मैंने आपको ये समझाने के लिए लिया था कि कैसे वो कंजक्टिवा रिफ्लेक्ट होके वहाँ पे फॉनिक्स बनाती है। इस डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा क्लियर है
ये थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम है। आप देखिए ये लैशेस निकल रही हैं, ये हमारा लिड है और कंजंक्टिवा ये इसके ऐसे लाइन करती हुई नीचे तक जा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती सैक के बाद ये वापस लिम्बस पे ही रुक जाती है। कॉर्निया के ऊपर एपिथेलियम यानी ये जो कंजंक्टिवा है वो वहाँ पे नहीं होती है। अगर कंजंक्टिवा का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जानना चाहें तो इट इज सेवरल लेयर्स थिक। जो डीपर सेल्स हैं ये मतलब अगर एपिथेलियम में, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कंजंक्टिवा को तो ये हमारे को स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, जी, जी, जी। एपिथेलियम, एपिथेलियम और उसका नीचे Substantia सब्सटेंशिया propria। प्रोप्रियम या स्ट्रोमा जिसे कहते हैं। एपिथेलियम में जो सेल्स जो थोड़े डीपर हैं लेयर्स में वो सिलिंड्रिकल होते हैं। देन ग्रेजुअली उनका फ्लैटनिंग स्टार्ट हो जाता है एज दे कम अप टुवर्ड्स द सरफेस, क्वाइट सिमिलर टू स्किन। अगर आपने त्वचा की संरचना पढ़ी हो, ये अपना एनाटॉमी, तो आप समझ पाएंगे कि उसी तरह से नीचे के सेल्स थोड़े लंबे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ होते हैं, पर जैसे जैसे सरफेस पे आते जाते हैं सेल्स की हाइट कम होती जाती है, न्यूक्लियस थोड़े कम दिखने लगते हैं और बिल्कुल ऊपर आते आते हमारी स्किन में तो केराटिन बन जाता है। लेकिन कंजंक्टिवा में केराटिन नहीं होता है, बट सुपरफिशियल लेयर्स आर मोर फ्लैटेंड and they are the ones which keep changing also. Then goblet cells are present in the epithelium. Epithelium के बाद ये यूजुअली 4-5 लेयर्स का होता है और उसके बाद में जो नीचे वाला पोर्शन है उसको स्ट्रोमा या सब्सटेंशिया प्रोप्रिया कहते हैं। इसके 2 लेयर्स हैं, ऊपर वाली एडिनॉइड लेयर जिसमें आपको लिम्फॉइड टिश्यू मिलता है और उसके नीचे वाला फाइब्रस लेयर जो फिर स्टेरा के साथ कंटिन्यू कर जाता है। कॉर्निया ले लें सर? थोड़ा डिस्कस तो कंजंक्टिवा के बारे में एक सम अप कर देते हैं। हाँ, हाँ। और इसमें यदि आप लोग कुछ अभी कोई सवाल आपके जहन में आया हो तो पूछ लें, नहीं तो बात के लिए रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आगे बढ़े। बिल्कुल। कॉर्निया जो है उसका हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ट्रांसपेरेंट है, आई का इम्पोर्टेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम ये माने कि कॉर्निया हमारी आई की जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो करीबन 60 डायप्टर मान के चले हम कि हमारी आई की रिफ्रैक्टिव पावर इज 60 डायप्टर्स प्लस 60 डायप्टर्स, जिसमें से 40 डायप्टर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द कॉर्निया एंड द लेस 20 डायप्टर इज फ्रॉम द लेंस। सो कॉर्निया इज transparent, it has to remain transparent throughout life because it's a very very important refractive part of the eye. कॉर्निया के 5 लेयर्स के बारे में आपको हम बता देते हैं। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो दिखना तो धुंधला हो जाएगा। अगर कॉर्निया में ट्रांसपेरेंसी जरा सी भी हैम्पर हो तो कॉर्निया में हम बोलते हैं वाइटनेस आ गई है या कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई है या या कॉर्नियल स्कारिंग हो गई है और वो आपको रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी और दिखाई नहीं देता है। सो कॉर्निया की जो ब्लाइंडनेस जिसको हम इतने मोटे तौर पे जिसके लिए इतनी ट्रांसप्लांट्स, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, आई डोनेशन की बात करते हैं, ये बेसिकली कॉर्नियल ओपेसिटीज के लिए हैं, क्योंकि वो अगर खराब है तो आपकी पूरी आई पीछे से बेशक कितनी सही हो, ठीक हो, लेंस ठीक हो, रेटिना परफेक्ट हो, बट इफ द कॉर्निया इज ओपेक और डर्टी और ओपेसिफाइड और नॉट ट्रांसपेरेंट, आपका विजन नहीं हो सकेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। कॉर्निया की मेरे ख्याल जब हम पैथोलॉजी करेंगे तो कॉर्नियल अल्सर्स और कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज वगैरह, हाँ, फिर ये लोग को पेशेंट भी देखेंगे कि कैसे दिखते हैं। कॉर्निया की जो 5 लेयर्स हैं उनके बारे में आपको बता दूं मैं। सबसे ऊपर जो लेयर है वो एपिथेलियम है विच इज 3 to 4 लेयर्स थिक एंड दीज सेल्स आर प्लेस्ड ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप लोगों को थोड़ा सा समझने की बात है कि ये है जो हमारे एपिथेलियम को बाकी की उससे सेपरेट करती है। सेल्स को रखने के लिए एक सहारा है जिसके ऊपर आप समझिए अपने ब्रिक्स रख दिए, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे की लेयर है। जो कुछ भी बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है वो कॉर्निया को ज्यादा डीपर चोट पहुंचाता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉर्निया। इसके अलावा जो हमारे लेयर्स हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताने से पहले ये बताना चाहूंगी कि जो कंजंक्टिवा का एपिथेलियम है जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया 3-4 लेयर थिक होता है, ये लिम्बस की तरफ जाते जाते ट्रांजिशन के थ्रू गुजरता है। ट्रांजिशन मतलब चेंजेस आते हैं इसमें और फिर ये कॉर्नियल एपिथेलियम में धीरे धीरे बदल जाता है। तो कंजंक्टिवा एज सच रुक जाती है लिम्बस से पहले, इसका एपिथेलियम कंटिन्यू करता है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होता है विच इज नोन एज ट्रांजिशन लिम्बस पे, और फिर ये कॉर्निया का एपिथेलियम बन जाता है विच इज अगेन वेरी ट्रांसपेरेंट, नो ब्लड वेसल्स। कॉर्निया की इसके बाद वाली जो लेयर है वो बोमेन मेम्ब्रेन कहलाती है।
बोमन मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है। कुछ भी डैमेज अगर इस लेयर में हो, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, अगर कोई इंजरी, कोई अल्सर, तो परमानेंट ओपेसिटी आंख में हो जाती है, क्योंकि एपिथेलियम तो रीजनरेट कर जाता है। सुपरफिशियल अल्सर है, हील हो गया, कॉर्निया फिर से आपकी क्लियर ट्रांसपेरेंट हो गई। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अगर वो बोमन मेम्ब्रेन को तक पहुंच जाए प्रॉब्लम, तो जो भी स्कारिंग या ओपेसिटी बनेगी वो लाइफ लॉन्ग होगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अल्सर हो या चोट हो, एब्रेजन हो, उसको जल्द से जल्द मैनेज करें, ट्रीट करें, ताकि गहराई तक ना पहुंचे वो जख्म, और परमानेंट ब्लाइंडनेस के बजाय हम उसको उस लेवल पे ही ठीक कर लें जब वो पेशेंट को फिर भी हील होने के बाद दिखेगा। इसके बाद जो आता है वो आपका कॉर्निया का स्ट्रोमा है, जिसे सब्सटेंशिया प्रोप्रिया कहते हैं। ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, लैमेले और सेल से बना होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेयर है जो डिस्मिस मेम्ब्रेन कहलाती है। दिस इज एन इलास्टिक लेयर, बैरियर है। डिस्मिस मेम्ब्रेन जो है वो एंडोथेलियल सेल्स को सपोर्ट देती है, और आई में जो एक्वस आपका है उसको और बाकी की कॉर्निया को सेपरेट करती है। एंडोथेलियम के जो हेक्सागोनल सेल्स हैं, सिंगल लेयर, उनमें एक एक्टिव पंप है। अगर आप लोग थोड़ा सा वापस चले अपनी छोटी क्लासेस की तरफ और सोचें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपीज खर्च होते हैं, तो वी कॉल इट एज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, जो जब आप बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर से रिवाइज कराएंगे। ये वो पंप है जो एक्वस को कॉर्निया में घुसने से रोकता है। कॉर्निया के बाहर की तरफ आप देखिए टीयर फिल्म है, कॉर्निया के जस्ट अंदर एक्वस है, फिर भी वो पानी से वंचित है। उसमें पानी आ जाएगा तो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, तो उसमें पानी नहीं घुसने देना इज द फंक्शन ऑफ एंडोथेलियम, जो डिस्मिस मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर है ऑफ हेक्सागोनल सेल्स। देयर इज ओनली वन सिंगल लेयर ऑफ कॉर्नियल एंडोथेलियम। माइंडेड इट इज 100%, इट इज वर्किंग ऑल द टाइम, एनर्जी डिपेंडेंट है, पानी को फेंकती रहती है कि पानी कॉर्निया में ना घुसे। इस पंप के फेल होने पे पानी एक्वस ह्यूमर कॉर्निया में घुस जाता है और फिर कॉर्निया ओपेक हो जाती है, जिसको हम कॉर्नियल एडीमा कहते हैं, जैसे कि ग्लोकोमा में होता है या किसी और तरह से जिसमें हम एंडोथेलियम डैमेज हो जाए, उसमें ही प्रॉब्लम्स आते हैं। एंडोथेलियल की जो सिंगल सेल लेयर है ये भी रीजनरेट नहीं करते हैं, तो यदि कोई आई सर्जरी हो या कोई दिक्कत हो या कोई एनी डिजीज और इन्फ्लेमेशन और इंजरी, तो कॉर्निया की एंडोथेलियम के अगर जो सेल्स खत्म हो गए वो सेल्स तो दोबारा नहीं आते हैं, पर डिस्मिस मेम्ब्रेन की जो बची हुई जगह है उसे कवर करने के लिए बचे हुए एंडोथेलियल सेल्स अपना साइज बड़ा कर लेते हैं। सो दे एनलार्ज टू कवर द रेस्ट ऑफ द डिस्मिस मेम्ब्रेन, बट द नंबर विल नॉट इंक्रीज, एंड विद एज द एंडोथेलियल सेल काउंट, दिस इज नोन एज एंडोथेलियल सेल काउंट, जो एक पर्सन में एक नंबर, एवरेज एक नंबर है, उसको विद एज थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। एनी इंजरी टू कॉर्निया और एनी सर्जरी इन द आई usually reduces the endothelial cell count. आप ये डायग्राम देखिएगा, ये तो हिस्टोलॉजी का है। हाँ जी, ये एक डायग्राम मैंने निकाला है जिसमें हम कॉर्निया का ये पार्ट जो है ये कॉर्निया का एपिथेलियम है, और ये वाला जो है स्ट्रोमा या सब्सटेंशिया प्रोप्रिया है। ये एक डायग्राम है जिसमें आप जरा गौर से देखें तो ये एंडोथेलियम की एक लेयर को फोटोग्राफ किया हुआ है। अब देखिए सारे के सारे सेल्स हेक्सागोनल हैं और ये सिंगल लेयर ही होती है, ऐसा नहीं है कि 2-3 लेयर्स हैं, और सिंगल लेयर होने भी है। दूसरा मुश्किल की बात यह है कि एक सेल दोबारा 2 बनता ही नहीं है, रीजनरेट करता ही नहीं है, दे नेवर मल्टीप्लाई। तो थोड़ा सा आपको हम प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म के बारे में बताएं, जो हमारे मैडम टीयर फिल्म तो था, पर प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म भी होता है पर? हाँ, मैं वही बताना चाह रही थी, जिसे हम आमतौर पे टीयर फिल्म कहते हैं, वो कॉर्निया के चूंकि ऊपर है इसलिए उसका पूरा नाम, जी जी, पूरा नाम है प्री कॉर्निया टीयर फिल्म। प्री कॉर्नियल टीयर ना, एक्चुअली वो टीयर फिल्म ही है। इसके अपने 3 लेयर्स हैं। आउटर जिसको हम लिपिड लेयर मानते हैं वो आती है हमारी मेबोमेन ग्लैंड से, जो अच्छा मतलब ये फैटी लेयर होती है। जी, ये फैटी लेयर होती है, जो हमारी लिड्स में जो मेबोमेन ग्लैंड्स हैं वो इसको सिक्रीट करती हैं, और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो एक्वस लेयर है उसका इवेपोरेशन को कम करें क्योंकि वो ऑयली है। दूसरा ये कि वो सरफेस टेंशन को कम करती है, जिससे आंसू हमारे पलकों के बाहर ढलकते नहीं हैं, अंदर ही मेंटेन रहते हैं, एक कैपिलरी एक्शन सा मेंटेन रहता है। बीच वाली लेयर जो है वो एक्वस है, यानी कि वाटरी है।
जो आमतौर पे और जिसको बेजल टीयर फिल्म सिक्रीशन कहते हैं, उसमें ये वाली एक्वस का पार्ट जो कंजक्टिवा की ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस और वोल्फ्रिंग है वो सिक्रीट करती हैं। लेकिन अगर रिफ्लेक्स सिक्रीशन हो जिसमें इमोशनल पार्ट और हम जब रोते हैं या हमारी आंख में कुछ चला जाए और बहुत सारा पानी निकलता है, वो फिर हमारी लक्रामल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। जो इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूसिन लेयर है, जो मैंने आपको भी पहले बताया, गॉबलेट सेल से सिक्रीट होते करते हैं। और गॉबलेट सेल जो है आते जाते रहते हैं, सिक्रीट किए खत्म हुए फिर अपीयर हुए एंड दे प्रेजेंट इन द एपिथेलियम। इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम इसको बहुत बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखना चाहें तो जो हमारी एपिथेलियम है सबसे ऊपर वाली कॉर्निया में, उसके सेल्स में इंटरडिजिटेशंस यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको आप लोग अगर रिमेंबर हो तो इफ यू रिमेंबर माइक्रोविलाई हम कहते हैं। और जो म्यूसिन लेयर है उसमें भी इसी तरह के इंटरडिजिटेशंस या फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं और वो उसको अच्छे से जोड़ लेते हैं जो कॉर्निया के ऊपर में वो है एपिथेलियम में और जो इसमें है, जिससे कि एक यूनिफॉर्म म्यूसिन लेयर पहले बनती है कॉर्निया के ऊपर, उसके बाद ही उसके ऊपर एक्वस लेयर एक यूनिफॉर्म फिल्म बना सकती है। बिकॉज अगर आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो कॉर्निया का एपिथेलियम इज हाइड्रोफोबिक, वो अपने ऊपर पानी को नहीं टिकने देगा। तो जरूरी है कि पहले म्यूसिन लेयर कॉर्नियल की एपिथेलियम के ऊपर इस तरह से एक टाइट लेयर बना ले और उसके ऊपर आपका एक्वस लेयर जो है वो एक फिल्म बनाए, तो वो फिल्म यूनिफॉर्म बनी रहती, वरना वो तुरंत टुकड़ों टुकड़ों में पानी के ड्रॉपलेट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो म्यूसिन लेयर का सही मात्रा में सही क्वालिटी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो ड्राई आई पेशेंट्स हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम ईदर म्यूसिन डिफिशियंसी और नॉट क्वालिटी म्यूसिन और बैड क्वालिटी। जो टीयर फिल्म का फंक्शन बेसिकली आई को मॉइस्ट रखना है जी, आई और कॉर्निया, आई और कॉर्निया स्पेशली कॉर्निया को मॉइस्ट करना है। अगर ये नहीं होगा तो आई ड्राई हो जाएगी, आई ड्राई हो जाएगी, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। आपके बेसिक रिफ्रैक्शन में भी प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म पार्ट प्ले करती है। अगर आप गौर से कहीं देख रहे हो और आंखें ना झपकाएं तो आपको हल्का सा तकलीफ और ब्लरिंग आने लगती है। आप एक बार फिर आंख बंद करके खोलते हैं, टीयर फिल्म फिर से दोबारा से स्प्रेड कर जाती है एंड योर विजन बिकम्स क्लियर। सो इवन इन रिफ्रैक्शन प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म हैज अ इम्पोर्टेंट रोल। अब हम आई के मिडिल कोट की बात करते हैं, विच इज द यूवेल ट्रैक्ट। यूवेल ट्रैक्ट ये बीच वाला हिस्सा है। जी जी, ये बीच की मिडिल कोट है, हाँ मिडिल लेयर है। जो इसके एंटीरियर पार्ट में अगर हम देखें, आई के एंटीरियर पार्ट से मेरा मतलब कॉर्निया के पीछे वाला, तो इसमें आइरिस और सीलियरी बॉडी आते हैं। और जो पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल, यानी कि जो रेटिना के और स्क्लेरा के बीच में आएगा, वहां पे इसका नाम कोरॉइड हो जाता है। लेयर सेम है, वो सेम लेयर जो सेम लेयर है। इंटीरियर पार्ट जो शुरू में होगा उसको आइरिस कहेंगे, उसके बाद सिलेरी बॉडी आ जाएगी और जो पीछे वाला हिस्सा जो पोस्टीरियर पार्ट होगा, ये सब कंटिन्यूअस है, उसको कोरॉइड बोलते हैं जी। और यूवेल ट्रैक्ट इज द वैस्कुलर लेयर ऑफ द आई। It is main function is to provide nutrition to various layers and parts of the eye, and it is very very prone to damage. चाहे वो external injuries हों, चाहे वो अंदर के inflammations हों। It's very simple. जहाँ blood नहीं है वहाँ infection नहीं पहुँचता usually, जहाँ वहाँ inflammation भी नहीं होती है। लेकिन अगर blood है, circulation है, तो वहाँ पे ये सब चीजें होती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी होगा, इन्फेक्शन भी होगा, इन्फ्लेमेशन भी होगा। इसलिए यूवेल ट्रैक्ट it's so vascular कि it's basically blood vessels and nothing else, so it is very prone to damage. इसके बाद आपका, जैसे मैंने आगे आपको बताया कि जो आइरिस लेंस डायफ्राम जो है, कोरॉइड के बाद आपने आइरिस बताया था, एंटीरियर पार्ट में जो आइरिस के बारे में बताया था, उसमें जो बीच में सेंट्रल में जो ओपनिंग है वो प्यूपिल कहलाती है। आपको थोड़ा सा मैं एम्ब्रियोलॉजी में बता दूं कि जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस वक्त आइरिस इज अ कंटिन्यूअस शीट जिसमें कोई छेद नहीं है। पहले एक पर्दा सा बन जाता है आइरिस का, फिर धीरे 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 उसमें बीच में रिजॉर्प्शन कहते हैं हम, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती जाती है और धीरे धीरे ओपनिंग बनती जाती है जो बाद में प्यूपिल कहलाती है। इसका मतलब ये कि कभी कभी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो है प्यूपिल नहीं होता। तो ये कंजेनाइटल डिफेक्ट्स में अगर देखा जाए तो कई बार हो सकता है कि प्यूपिल ना हो या प्यूपिल एक से ज्यादा हो। You can have more than one pupil. You can have eccentric pupil
इट्स वेरी कॉमन टू सी परसिस्टेंट पिपुलरी फाइबर्स, जिसमें पिपल के एक तरफ से धागे जो हैं पिपल के दूसरे पार्ट तक जा रहे हैं, जो अक्सर हम लोग जब पेशेंट को देखते हैं तो एक फाइंडिंग की तरह नोट कर लेते हैं। इसका मतलब सारे फाइबर्स नहीं रिजॉल्व हुए हैं। ये अच्छा आपने पॉइंट बताया कि स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे डेवलपमेंट होता है और आगे जाके वो बीमारियों से उसको कैसे कोरिलेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोरिलेट करें। और अगर उनको ये समझ है कि कैसे ये डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हुआ और कोई ऐसा केस देखते हैं जिसके अंदर की आयरिस पीपल जो डेवलप नहीं हुआ या मल्टीपल पीपल है, तो वो कोरिलेट कर सकते हैं उससे कि भाई ये मोर देन वन ओपनिंग बन गई, रिजॉर्प्शन ज्यादा हो गया, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल जी। It iris can be absent also in some patients. जो पिपल का एक मेन पार्ट है वो ये कि अब मैंने आई थिंक आप और पहले भी आपको एक बार बताया था, हमारा आई कैमरा है। कैमरे में आगे आपको शटर चाहिए जो लाइट की एंट्री रेगुलेट करता है। हमारी आई में ये काम आइरिस और पिपल मिलकर करते हैं। अगर लाइट बाहर कम है तो पिपल का साइज बड़ा हो जाएगा सो दैट मोर लाइट कैन गो इन, और ऐसे में हमारी डायलेटर पिपल ही काम करती है जो आइरिस को स्ट्रेच करके और पिपल को बड़ा करती है। अगर लाइट बहुत ज्यादा पड़े, जैसे हम आंख में टॉर्च डालते हैं, पिपल हमारी आप देखिए पिपल एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, छोटी हो जाती है, बिकॉज अभी इतनी लाइट नहीं चाहिए। सो द शटर इज ट्राइंग टू क्लोज एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट गोइंग इनसाइड द आई। ये जैसे हमने देखा होगा, जैसे कार पे जा ड्राइव कर रहे हैं तो सामने से एक तेजी से कोई बत्ती लाती है तो एकदम हमारी आंखें जो है वो दिखना सा बंद सा हो जाता है। वो इसको हम बोलते हैं एकदम से डैजल हो जाते हैं, आप तेज लाइट जाती है। तो पिपल का रोल है कि आपकी आंख में उतनी ही लाइट जाए जो आपकी रेटिना के लिए डैमेज ना करती हो, और बाहर की लाइट के हिसाब से पिपल का साइज होता है। आप अपने एक दूसरे पे करके इजीली देख सकते हैं। अब तक आप देख ही चुके होंगे, लॉन्ग टाइम नाउ जब से इन्होंने ज्वाइन किया है। फिर थोड़ा सा सिलेरी बॉडी के बारे में आपको बता देते हैं। सिलेरी बॉडी आपको कुछ चीजों के लिए आप किताब के डायग्राम से हेल्प लीजिए। अगर आपके यहाँ जहाँ भी आपका स्टडी सेंटर है, मॉडल्स हैं, वहाँ हेल्प लीजिए। एंड टेल यू टीचर्स टू एक्सप्लेन यू, आंख बंद करके आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि सब गोल गोल है। हम यूजुअली किताबों में सेक्शंस को समझ लेते हैं, बट एक्चुअली सब कुछ 360 डिग्री है। आपका आइरिस 360 डिग्री है, आपकी सिलेरी बॉडी उसके चारों तरफ 360 डिग्री है। प्लेन पेज पे तो ऐसा लगता है कि जैसे आई ऐसे हो, काट के दिखा देते हैं। तो मतलब आपका ये कहना ठीक है, अगर हम किसी चीज को समझना चाहते हैं तो उसको एक इमेजिन करना पड़ेगा, करें या मॉडल की हेल्प लें, क्योंकि सब कुछ 360 डिग्री है। काट के सेक्शन में हम एक ही एंगल दिखा पाते हैं। काट के तो एक ऐसे लगेगा कि एक प्लेन में है, पर वो एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा नहीं है, वो पूरा गोल है। एक मिनट आपको जब मैं मॉडल पे बता देती हूँ कि अगर ये हमारा ये है, अगर ये राउंड है आइरिस, तो सिलेरी बॉडी भी 360 डिग्री है। ये थोड़ा फोकस कर देते हैं इसको, थोड़ा सा फोकस करेंगे इसको। हाँ, ये थोड़ा बेटर हो गया। अब अगर हमारा आइरिस इस तरह से 360 डिग्रीज है तो इससे थोड़ा पीछे अंदर की तरफ सिलेरी बॉडी भी 360 डिग्रीज है। उसके ऊपर आपका स्क्लेरा और लिम्बस वाला पार्ट आ जाता है थोड़ा सा, तो बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन ये 360 डिग्रीज है। हम आपको जो भी डायग्राम दिखाते हैं वो एक्चुअली सेक्शन वाला होता है। तो अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि सिलेरी बॉडी के दो पार्ट्स हैं। जो लिम्बस के करीब है वो पार्स प्लाइकेटा है, और जो और पीछे की तरफ जाता है टुवर्ड्स रेटिना वो पार्स प्लाना है। पार्स प्लाइकेटा का मतलब हुआ उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। प्लाइका मीन्स you can have processes, you can call them, और प्लेना means plane। so जो सिलेरी बॉडी का पार्ट आपका पीछे वाला है, जो प्लेना है, उसमें कोई सिलेरी प्रोसेस नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन है, और वो जहाँ खत्म होता है उसे हम ओरा सेरेटा कहते हैं। ठीक वहीं से रेटिना शुरू होती है। ये लैंडमार्क्स इंपॉर्टेंट हैं अगर कुछ बीमारियों को समझने के लिए, एग्जामिनेशन को समझने के लिए, और जाहिर है आगे फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए लैंडमार्क समझना थोड़ा जरूरी है। ये सिलेरी बॉडी का दिखा सकते हैं जरा इसमें तो नहीं इसमें बाहर से ना उसका 360 डिग्रीज का जो है ये स्लाइड, हाँ वो भी आगे दिखा देती हूँ। इसमें पूरा कवर करके फिर इनको बताती हूँ। स्फिंक्टर पिपली जो मसल है, ये पीपल को जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पीपल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, बिकॉज इट्स अ राउंड मसल which on contraction will go on reducing the size of the pupil. Dilator, as the name suggests, is going to dilate the pupil. ये रेडियल फाइबर्स होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खींच लेते हैं और pupil डायलेट हो जाती है। सिलेरी बॉडी में जो मसल है, जिसको हम सिलेरी मसल कहते हैं, वो उसका अकोमोडेशन में पार्ट प्ले करते हैं, आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे।
और सिलरी प्रोसेसेस का मेन फंक्शन है एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन। कोरॉइड जो है वो स्क्लेरा और रेटिना के बीच में पीछे वाले पार्ट में है। सो इट इज द मिडिल लेयर इन द पोस्टीरियर पार्ट। इट इज just below the sclera and just above the retina. It is highly vascular. It also has 5 layers. आपकी बुक में डायग्राम बने हुए हैं। बुक जो सबसे इसकी जैसे आप अंदर से अगर बाहर जा रहे हो तो जब रेटिना की आरपी खत्म होती है, यानी कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम खत्म होता है, उसके जस्ट बाद ब्रुक्स मेम्ब्रेन होती है जो नॉन सेलुलर है, सपोर्ट के लिए होती है। उसके बाद आपकी एक लेयर है जो फाइन कैपिलरीज के बनी होती है, इसको वी ऑल्सो नो कॉल इट एज कोरियो कैपिलरीज। उसके बाद वाली लेयर मैं अंदर से बाहर की तरफ बता रही हूँ। तो रेटिना के जस्ट बाद जो लेयर आएगी वो ब्रुक्स मेम्ब्रेन, उसके बाहर निकले कोरियो कैपिलरीज, उसके और बाहर गए तो लेयर ऑफ मीडियम साइज वेसल्स, और बाहर गए लेयर ऑफ लार्ज साइज वेसल्स, और बाहर गए तो फिर से फाइब्रस लेयर सुपर कोरोइडल लैमिना की, जिस मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज, एंड उसके जस्ट बाहर आपको स्क्लेरा मिलती है। सो दिस ये ऑर्डर है लेयर्स का फ्रॉम द इनसाइड आउटवर्ड्स। मैडम आई थिंक एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर लेने से पहले हमारे को थोड़ा सा विराम लेना पड़ेगा। हाँ जी, लीजिए बताइए। क्योंकि इस समय 2 मिनट रह गया है, तो मैं सब जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर 1-2 मिनट में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं जो सम अप करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर नीलम ने हमारे को बड़ी अच्छी तरह से बताया कि आई के एनाटॉमी के बारे में, कि आई के जो है 3 जो डिफरेंट लेयर्स हैं, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, और उसके बाद जो है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। उन्होंने बताया कि 3 एक्टोडर्म, मेसोडर्म और तीसरा न्यूरोडर्म बताया, और टीयर फिल्म के बारे में बताया कि टीयर फिल्म जो आउटर होती है, एक मिडल होती है और एक इनर टीयर लेयर, एंड टीयर फिल्म के फंक्शंस के बारे में भी डॉक्टर नीलम ने हमारे को बताया, और जो आइरिस, सिलरी बॉडी, कोराइड, ये जो मिडिल लेयर है आई की, उसके बारे में भी बताया। अभी हम जो है नेक्स्ट सेशन में जो है ब्रेक के बाद एक 3:30 पर हम आगे की दूसरी लेयर्स हैं, और एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, रेटिना, और उसके बाद इनको आज ये कोशिश करी थी कि हम थोड़ा रिवाइज कंप्लीट सभी करा दें। लैक्राइमल अपरेटस भी है, विजुअल पाथवेज हैं, विजुअल पाथवेज, ये सारा जो हम थोड़ा सा करा देंगे, ताकि आप एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर इसके बाद भी अगर आपकी कुछ समस्याएं हों, कुछ क्वेरीज हों, तो आप हमारे को क्वेश्चन जो है बाद में वो कह सकते हैं। हम एक गो में पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ समझ में नहीं आया। एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। अभी हम ब्रेक के लिए जाएंगे और 15 मिनट बाद वापस आएंगे। तब तक आप अपने प्रश्न सोच के रखिए और अपने प्रश्न जो है हमारे को आने के बाद बताइएगा।